Today we are to discuss about semiconductors. Everybody know about the conductor. If you can go for a conductor, and if you can talk about insulator, you have two things: conductor and insulator. Clear? So conductor means that from one end, if you are applying electricity or heat, you are getting on the other end. This one is the total simple definition of the conductor. If you can talk about insulator, you can talk about two, like plastics. All are the insulators. That if on one end, if you are applying something that you are not getting on the other end. This one was the simple example or simple definition of the conductor and insulator. But when you can talk about semiconductor. Right now in the modern era, it's very important to know about the semiconductor. Because if you can talk about the difference between electric device, clear? If you can talk about electric device and if you can talk about electronic device, clear? If you can talk about electric device and electronic device, both are different, right? Electronic devices are taking less voltage, clear? Electronic devices are taking less voltage. And if you can talk about electrical device, it will take more voltage. Is it clear? If you can talk about motor, that motor, what you are getting, you have to apply more voltage. Clear? If you can talk about yellow bulb, that we all are using in old time or in the past years. So at that time, the 100 watt we are purchasing in 10 rupees. Filaments are there, and it was 100 watt, right? So right now, if you can take, you are going for LED, right? You are going for a LED. In 9 watt, you are getting too much of brightness, right? In 9 watt, you are getting too much of brightness, right? And you are getting that less heating effect also, right? अगर यहाँ पे कोई LED लगी है तो भी उतना हीटिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर हैलोजन लगा दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, राइट? सो बोथ आर डिफरेंट, वन इज इलेक्ट्रिकल एंड अदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक. इन द सेम वे इफ यू कैन टॉक अबाउट कंप्यूटर, राइट? मोबाइल फोन, ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक. मोबाइल फोन आप चार्ज लो वोल्टेज पर भी करके जाते हैं, राइट? यू आर गोइंग ऑन टू लो वोल्टेज, मोबाइल विल बी चार्ज इन फ्यू मिनट्स, 30 minutes, right? Approx 30 to 40 minutes a good mobile phone will take to complete the charge. Is it clear? But if you can talk about motor, if you can talk about if you are talking about the generator at that time, motor की जब बात करते हैं, you have to apply voltage, it will work, sound, noise pollution is also going there. So electronic devices are taking less voltage, utilization of less voltage, and in electrical devices it will take more voltage. Is it clear? In the same pattern, if you are talking about electrical devices and if you can talk about electronic devices, is it clear? Now what we have other thing, like if you are talking about electrical device, electronic device, but how electronic devices are working, clear, is the main question. How they are taking less, but how they are in this era at a broader level, we are utilizing the electronic devices. We are using diode, right? हम डायोड का यूज कर रहे हैं, right? ट्रांजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं. ये सारी चीजें कैसे हुई? आज सेल फोन, राइट? अगर इस सेल फोन की बात की जाए तो जो पहले सेल फोन आता था, एक बड़ा सा सेल फोन आता था, आज सेल फोन छोटा होते जा रहा है और सेल फोन के अंदर क्या फंक्शंस बढ़ते जा रहे हैं. डे बाय डे यू आर गेटिंग मोर एंड मोर फंक्शन. ये कैसे हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल दैट मोर, इफ यू कैन परचेज आईफोन, एप्पल फोन, यू विल गेट मोर एंड मोर फंक्शंस देयर. उस फोन में स्पेस होता ही नहीं है, उस फोन में स्पेस होता ही नहीं है, बिकॉज द स्टोरी इज वेरी क्लियर. मार्क जुकरबर्ग, अगर आप सॉरी फेसबुक नहीं, स्टीव जॉब्स की बात करें जो एप्पल कंपनी का सीईओ था उस टाइम पे, राइट? वे कंपनी में एक्चुअली में उससे कुछ नहीं आता, वे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था. उसका जो फ्रेंड था वे ज़्यादा जानता था, लेकिन उसका टैकल और प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि वे उस कंपनी को रन करा था. उसके एडमिनिस्ट्रेटिव में मतलब ही वाज यूजिंग वर्ड्स एंड ऑल फॉर डीलिंग विद द एम्प्लॉय. वे अपने एम्प्लॉय को अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करता था, हायर एंड फायर, राइट? तो वे ज़्यादातर उसको उसके साथ एक और मैनेजर लगाना पड़ता था जो उसको कंट्रोल करता था, राइट? वे इनोवेटिव था, ही वाज इनोवेटिव. प्रॉब्लम क्या था उसके साथ कि जब एम्प्लॉय आए
बोले कि सर ये आपका सेल फोन हमने क्या, उसने कहा कि अभी इसमें स्पेस नहीं सर नहीं है, कह रहा है कि अभी स्पेस है, उसको लेकर फिर गए सेल फोन को, फिर उसमें कुछ और चीज़ें उसमें एंटर किया, सर अब इसमें स्पेस अभी भी है, गो एंड चेंज इट, अगेन उसको चेंज किया, सर अब नहीं हम थक चुके नहीं है। उस एम्प्लॉय ने कहा सर मैं चैलेंज करता हूँ कि नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, एक्वेरियम रखा हुआ था, एक्वेरियम के अंदर उसने फोन डाल दिया, बबल्स बाहर आने लगे, बबल्स मींस एयर, स्पेस है, राइट। उसने कहा कि इसमें अभी स्पेस है, तभी तो बबल्स बाहर आ रहे हैं, द बबल्स इज कमिंग आउटसाइड बिकॉज़ देयर इज ए स्पेस, सो दैट्स द रीजन परफेक्शन नीडेड, he told that perfection needed, that's the reason you are getting perfection in iPhone. आज iPhone का क्रेज इतना कि भाई you people are totally that I want, everybody wants, सबका लास्ट दिन क्या iPhone परचेज करेंगे, right? Why? Because your standardization, उसकी जो क्वालिटी है, जो उसने कहा है, he will, company will gives you, right? कंपनी क्या करेगी, उसको प्रोवाइड करेगी, जो उसने कहा है मैं आपको प्रोवाइड, वे फंक्शन हैंग नहीं कर रही, हैंग नहीं करता, बहुत कम, 99% हैंग नहीं करता, 1% इट विल हैंग, बाहर की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके सारे खुद के फंक्शंस होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्लियर? नाउ इफ यू कैन टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो सबसे पहले हमें सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, इंसुलेटर कंडक्टर से ये कैसे डिफरेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन सेमीकंडक्टर नीड टू नो। इसके पहले हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना जरूरी है, बट फर्स्ट नीड आई फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में जानने से पहले हमें देखना होगा रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में। नीड टू नो अबाउट द रेजिस्टिविटी, दैट इफ यू कैन टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट रो, and if you are talking about conductivity that you are talking about the sigma. Is it clear that you are talking about resistivity, that you are talking about rho? If you are talking about conductivity, that you are talking about sigma. Is it clear? Resistivity will be rho and conductivity will be sigma. What actually we have? Clear. What we have the clearance related to it. The clearance related to it is very simple. That when you can talk about resistivity and conductivity, resistivity जिस भी मटेरियल का हाई होगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, लो। अगर कंडक्टिविटी हाई है तो रेजिस्टिविटी लो, राइट। रेजिस्टिविटी रेजिस्ट करेगा करंट के फ्लो, इज इट क्लियर? सो रेजिस्टिविटी R इक्वल टू, इफ यू कैन टॉक अबाउट R इक्वल टू रो L अपॉन A, एरिया, लेंथ, मटेरियल, रेजिस्टेंस की जब हम बात करें तो रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो R into A divided by L equal to, is it clear that you are talking about? In the same way, if you can talk about the conductivity, resistivity, on the basis of conductivity, we have a classification of metals, conductors, semiconductor and insulator. On the basis of conductivity, conductivity के बेसिस पे you have a simple question, ऐसा क्यों किया सर आपने, conductivity के बेसिस पे कैसे? Because sigma which is known as conductivity is reverse of 1 upon rho resistivity. Simply you can write conductivity is equal to 1 upon resistivity, hence sigma is inversely proportional to rho. That one is resistivity. Is it clear? Sigma is inversely proportional to rho. Now, if we can talk about the terms related to it, that how we are classifying the metals. Metals are generally conductors, insulator and semiconductor. So on the basis of conductivity, if you can go for a relative values of electrical conductivity, that one is sigma, or resistivity, the solids are broadly classified है, जो solid है उनको broadly जो हमने classified किया, that one is metals, semiconductor and insulator. So when you can talk about metals, metals means simply you are talking about, that one is metals, that one is you are talking about, what is the meaning of metal? That you are talking about conductor,
Clear? Metals. That when it possess, they possess very low resistivity. Resistivity क्या होती है? बहुत low. They possess very low resistivity. Clear? When they possess very low resistivity or high conductivity. Clear? They possess very low resistivity or high conductivity. That one 10 power minus 12 to 10 power minus 6. That one. Okay. This one is ohm meter. This one is for this one the resistivity. This one is the resistivity for the metal. Rigid. This one is the resistivity for the metal. And everybody knows sigma equal to 1 upon rho. So sigma is the conductivity 1 upon 10 power minus 12. It will change it into 10 power 12. Is that clear? And ohm inverse meter inverse. Is that clear? Ohm inverse meter inverse. So sigma that will be 10 power 12. Right? Resistivity क्या है? बहुत लो है. तो sigma क्या होगा? High होगा. Resistivity कम होगी तो sigma क्या होगा? It will be high. And it's showing that it will be 10 power 12. And the resistivity is 10 power minus 12 से लेकर 10 power minus 18. तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 power 12 से लेकर 10 power 18 inverse meter inverse हो जाएगा. Is it clear? This one is about the metals, which are simply known as the conductor. तो किस कैटेगरी में आते हैं? कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं. इसी तरीके से जब when you can talk about the semiconductors, when you can talk about semiconductors, clear? When you can talk about semiconductors, what will you get? Is it clear? That when you can talk about the semiconductors, they have resistivity or conductivity intermediate to metals and insulators. सेमीकंडक्टर में मेटल्स और इंसुलेटर्स दोनों का इंटरमीडिएट, दोनों के बीच का रेंज हो, इसका रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का. अगर रेजिस्टिविटी यू आर गेटिंग, रेजिस्टिविटी इज कंपेरेबल टू ओम इनवर्स, सॉरी 10 power minus 5, right, and 10 power 6 ohm meter that you are talking about. This one is the rho, that one is resistivity, sorry, rho, resistivity. At that time you will get what? Conductivity. Sigma. Conductivity equal to 1 upon 10 power minus 5, that one is 10 power 5. And if you get for 10 power 6, it will change it into 10 power minus 6. The range will be 10 power 5 to 10 power minus 6. And this one is a range of the semiconductor. Is it clear? This one is a range of the semiconductor. Is it clear? Any doubt up to this point? Now you can talk about the insulators. Clear? Yes, sir. If you can talk about the insulators, what we have to do in the insulators? They have high resistivity, right? High resistivity. Resistivity will be high. So resistivity will be in the positive things. Sorry, resistivity rho. 10 power 11 ohm meter to 10 power 19 ohm meter in positive. And if you can talk about sigma equal to 10 power 11, that one is 10 power minus 11 ohm meter. If you can talk about sigma equal to 1 upon 10 power 19, that one is 10 power minus 19 ohm inverse meter inverse. Is it clear? Ohm inverse meter inverse. Is it clear? Yes, sir. 10 power minus 90 ohm inverse meter inverse. Is it clear? Now what we have? This one is rho, this one is sigma. What you are getting? You are getting conductivity is very low and resistivity is very high. So this one is in the category of an Insulator. Wood, plastic and all.
And in the same manner, if you can talk about the metals, you know about the metals, clear? But if you can talk about the value of rho sigma, this is the one pattern on which the dividation complete. ये एक पैटर्न है जिसके ऊपर हमने इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को डिफाइन किया. दिस इज ओनली वन पैटर्न. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये क्लासिफिकेशन हुआ. जैसे इस क्लास में क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ ओनली रोल नंबर. अब आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइट. हाइट के क्लासिफिकेशन अलग होगा. Roll number according to the marks classification will be different. In the same way, you are getting that relative value of resistivity are not only the criteria for distinguishing metals, insulators and semiconductor from each other. There are some other criteria also in which we have to keep all the things in mind, and at that time you have to differentiate between insulator, semiconductor and conductor. Is it clear? और सारे क्राइटेरिया जो मैं पहले भी बता चुका हूँ. तो इस चैप्टर में जो हमें स्टडी करना है, we have to study about the semiconductor only. हमें किसके बारे में पढ़ना है? We have to study about semiconductor devices. We have to study about electronic devices. Is it clear? This one is totally the base of the electronic engineering, right? जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड का बेस है, राइट? कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ाया जाता है, इज एन बेस फॉर द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आईटी इंजीनियरिंग, राइट? सेमीकंडक्टर इज द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मेन है. जितने भी पेजेस और जितने भी टॉपिक है, whatever the topics and whatever the pages you will get in NCERT or in private book of class 12, the syllabus जो होगा सेमेस्टर का बुक वाइज एक पार्ट बुक वाइज बन जाएगा, राइट? ट्रांजिस्टर की एक अलग बुक होगी. ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, कम्युनिकेशन वाले अलग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला, राइट? मैकेनिक्स जो पढ़ता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है. उसके लिए मैकेनिक्स क्या चाहिए? डिफिकल्ट है, उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है. कार के बनाने के बारे में पढ़े, डिजाइनिंग के बारे में, राइट? तो इन सबको मिला के और हाइब्रिड ब्रांचेस बने, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये हाइब्रिड ब्रांचेस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये क्या हाइब्रिड ब्रांच, इनसे निकली हुई ब्रांचेस. लेकिन कोर ब्रांचेस जो है आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यही आसानी है. इलेक्ट्रॉनिक्स भी इनसे निकला हुआ है, राइट? और सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, यही तीन ब्रांचेज इंजीनियरिंग के, और इन्हीं का इंजीनियरिंग होता भी है. रेस्ट जो इंजीनियरिंग नहीं है, वे सारी चीज़ें इससे हाइब्रिड निकले हुई ब्रांचेज. सन है कोई, इसका डॉटर है, ऐसे है, लेकिन फादर, मदर, अंकल यही है, कहते हैं हम ही हैं सब कुछ तुम्हारे. इनको टच किए बिना कोर ब्रांचेज जिनको बोलते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं. मोबाइल फ़ोन कब आया होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी आई होगा. अगर इलेक्ट्रिसिटी होगा ही नहीं तो मोबाइल फ़ोन बना के हम करेंगे क्या, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल टास्क. इज इट क्लियर? इन द सेम पैटर्न अगर हम बात करें दैट जो सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. दैट इफ यू कैन टॉक अबाउट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, that one is you are talking silicon and germanium. Silicon and germanium. Is it clear? Inorganic, that one is compound semiconductor. So compound semiconductor is divided into the three: inorganic, organic polymers. इनऑर्गेनिक में देखेंगे तो CDS, GAS, CDSE, INP, ये सारी चीजें क्या आएंगी? इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में आएगी. एलिमेंटल का मतलब सिंगल एलिमेंट, कंपाउंड का मतलब दो एलिमेंट्स का मिलकर किसी रेशियो में, तो वे कंपाउंड सेमीकंडक्टर में आएगी. ऑर्गेनिक, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक थिंग्स लाइक एंथ्रेसीन, टॉप, क्लियर? ऑर्गेनिक पॉलीमर में पॉलीप्रोपोल, प्रोपिलाइन, ये सारी जो आ रही है ये किसमें आएगी? ये उस सेमीकंडक्टर में आएंगे, क्लियर? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर. और ये कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एलिमेंटल है, कौन सा कंपाउंड. जो आपके एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए उसको याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, उसी से आता है. उसी का 2 उठा के दे देगा, पूछेगा. एनसीईआरटी से बाहर कुछ सेमीकंडक्टर में नहीं आएगा. जो एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है,
tomorrow I will come with the NCERT and tomorrow is day after tomorrow. Tomorrow is Republic Day. So 27 I will come with the NCERT and I will take 27 is the what? Saturday, Sunday. No, sir. Thursday. Thursday. So tomorrow I will day after tomorrow when I will come with the NCERT I will tell where to mark. बहुत सारी चीजें उसमें मार्किंग. So अब आते हैं हमारे पास कि ये तो हमने डिस्कशन कर लिया कि एलिमेंटल है, कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है. तो सबसे बड़ी बात है एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. क्वालिटेटिव आइडिया. क्वालिटेटिव आइडिया का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी इफ यू कैन टॉक अबाउट क्वालिटेटिव आइडिया होता है. अभी एक इंट्रोडक्शन है. एनर्जी बैंड के बारे में बहुत कुछ बताना है. आई हैव टू टेल मेनी थिंग्स अबाउट द एनर्जी बैंड. एनर्जी बैंड के बारे में पूरा थियरी ही मुझे बताना है. अभी तो सेमीकंडक्टर का मैं बस क्या बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन. तो अभी सेमीकंडक्टर में जैसे एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, इंसुलेटर की बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करेंगे कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड. क्लियर? तो पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस बैंड. तो पहले ये नहीं जानते कि कंडक्शन बैंड क्या है, बैलेंस बैंड क्या है. फर्स्ट नीड टू नो how they are divided on the basis of balance band and conduction. पहले ये देखो, उसके बाद हम बताएंगे कंडक्शन बैंड के बारे में और बैलेंस बैंड के बारे में. Tomorrow I will discuss it about that you are talking about conduction band and balance band, right? अब हमने बना दिया एक कंडक्शन बैंड और एक क्या बना दिया हमने बैलेंस बैंड. When you can talk about the conductor means you are talking about metals, right? कंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी और रेजिस्टिविटी क्या होगी. When you can talk about the conduction band and balance band related to the conductor, तो कंडक्टर की जब बात करेंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, राइट? क्या करेगा? ओवरलैप. कंडक्शन बैंड एंड देन ये क्या होगा, बैलेंस बैंड. दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलैप, राइट? किसी बुक में ओवरलैप किया होगा, किसी बुक में ये गैप बहुत कम दिया होगा, लगभग ओवरलैप करेगा, राइट? कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा. या व्हेन यू कैन टॉक अबाउट दिस द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, वहां पे जब हम देखेंगे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. देयर आर टू पॉसिबिलिटी अबाउट द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड. देयर इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन द कंप्लीटली filled बैलेंस बैंड एंड पार्शियली filled कंडक्शन बैंड. This band structure is met in alkali metals, right? ये भी हो सकता है कि एक partially filled हो और एक completely filled हो, right? दूसरा हो सकता है the balance band is completely filled and the conduction band is empty. ये हो सकता है कि conduction band पूरी तरीके से empty और balance band पूरी तरीके से क्या हो, filled हो, right? So इस तरह के जो this band structure is seen in metals like Mg, Zn, etc, right? तो यहाँ पे जो गैप है, that whatever the gap you are getting, right? That your gap you are getting between the conduction band and balance band. Clear? इसको हम जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है उसको एनर्जी गैप बोलते हैं. दैट गैप इज नोन एज एनर्जी गैप. और इसको हम डिफाइन जो करते हैं जिस यूनिट को, उसको फर्मी बोलते हैं. जिस यूनिट में ये डिफाइन होता है या हम इसको लेते हैं, दैट unit is simply Fermi, right? So here what you are getting, that mostly in this case you will get the overlapping of balance band and conduction band. Now you have a question, what is the meaning of conduction band and what is the meaning of balance band? So I told that I will tell you about conduction band also and balance band also. जब हम पूरा सॉलिड का स्ट्रक्चर बताएंगे कि कंडक्शन बैंड क्या होता है और बैलेंस बैंड क्या होता है. लेकिन बस आप याद रखिए कि जैसे आप क्लासिफिकेशन कर, अभी इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर है, तो ये जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप के ऊपर जब क्लासिफिकेशन करेंगे, तो जो कंडक्टर होगा दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इंसुलेटर, कंडक्टर, मेटल्स की जब बात करेंगे, द गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड मे बी ओवरलैप और मे बी लिटिल बिट, इज इट, थोड़ा सा होगा या नहीं होगा, वे एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप. या कंडक्शन बैंड खाली होगा, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? अब आते हैं हम सेमीकंडक्टर के बारे में. जब सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, राइट, व्हेन यू कैन टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर and we have to study about the semiconductor. When you can talk about semiconductor,
When you can talk about the semiconductor, then you are talking about conduction band, then you are talking about valence band. Good there. Then when you can talk about conduction band, when you can talk about valence band. So, in which what you are getting, semiconductors are solids for which valence band is completely filled and conduction band is completely empty. कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से क्या होगा, एम्प्टी होगा, और वैलेंस बैंड पूरी तरीके से फिल्ड होगा. क्लियर? जो बैंड गैप होगा दैट वन इज इजी, इसको हम डिनोट करेंगे इजी से. दिस इज द बैंड गैप. ये बैंड गैप जो होगा इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इजी से. दैट वन इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा. Eg will be less than 3 electron volt. The gap between valence band and conduction band will be less than 3 electron volt. ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, कम है. क्लियर? जनरली जर्मेनियम की बात करेंगे तो जो गैप होगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. एंड इफ यू कैन टॉक अबाउट द सिलिकॉन, दैट सिलिकॉन यू विल गेट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इफ यू कैन राइट अबाउट द जर्मेनियम, जर्मेनियम में जब Eg होगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. And if you can talk about silicon, 1.1 electron volt. Is it clear? When you are talking about silicon, 1.1 electron volt, and germanium, 0.72 electron volt. Is that clear? Now, what you are getting, that if you can talk about conduction band, valence band, when you can talk about at absolute zero of temperature, clear? When you can talk about absolute zero of temperature, no need to tell about the absolute zero of temperature, everybody know, right? When you can talk about absolute zero of temperature, जो इलेक्ट्रॉन है वे एबल नहीं होंगे क्रॉस करने के लिए बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, मतलब इसको क्रॉस करने के लिए. जब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड क्रॉस करके Eg को चला जाए. क्लियर? सो तो यहाँ पे कोई भी करंट क्या करेगी, नहीं फ्लो करेगी जब 0 केल्विन की बात करेंगे. एंड दे बिहेव लाइक अ इंसुलेटर. क्लियर? वे एज ए इंसुलेटर बिहेव करेंगे जब हम 0 केल्विन की बात करेंगे. बट व्हेन यू कैन टॉक अबाउट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ थर्मल एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं. व्हेन दे एक्वायर सम थर्मल एनर्जी, so valence band electron will cross the Eg and go to the conduction band, और वहां पे करंट फ्लो करना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा. क्लियर? they move to the conduction band and where they free to move under the influence of even a weak electric current. weak electric current के में भी वे क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे. क्लियर? यहाँ पे जो है ये किसके बारे में हमने बताया, सेमी कंडक्टर के बारे में. नाउ इफ यू कैन टॉक अबाउट इंसुलेटर, in the insulator, if you can talk about insulator, conduction band and valence band, दोनों के बीच का जो Eg होगा, right? If you can talk about Eg will be greater than 3 electron volt. That here Eg will be greater than 3 electron volt. When Eg will be greater than 3 electron volt, clear? When Eg will be greater than 3 electron volt. Clear? Right? Eg will be greater than 3 electron volt. When Eg will be greater than 3 electron volt. Clear? What is the meaning? Eg बहुत ज्यादा greater than 3 electron volt. It's very difficult for valence band electron to cross and go to the conduction band. बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके कंडक्शन बैंड की तरफ जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और वहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और कंडक्टिविटी लो हो जाएगी. तो देखो इसीलिए कहा जाता है किसी एक बेसिस पे किसी को गलत नहीं बोला जा सकता. अगर ओनली ऑन वन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर बता देते तो जो अगर अभी आपको जो कॉज मिला है कि रेजिस्टिविटी लो क्यों होती है, हाई क्यों होती है, मीडियम क्यों होती है, ये पता नहीं चलता. तो ओनली ऑन वन बेसिस यू कांट से दिस पर्सन इज रॉन्ग और राइट. देयर इज अ नीड ऑफ मेनी रीजंस on which basis you can say this person is right or wrong, because even physics is telling
that there is a need of 2 or 3 things that you can prove it and you will get the causes, then you can say this one is a semiconductor material. Clear? Yes, sir. Because on every basis you will get different kind of properties, and maybe that property will be favorable for you or unfavorable for you. Is it clear? So this one is about the semiconductor classification on the basis of energy band. Is it clear? Now we can talk about electron and holes. Clear? अभी मैं सब इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, अभी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया. I have not started a single topic of CBSE board. Only one. अभी तक आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हुए हैं. एक जो मैंने बताया रेजिस्टिविटी का रेंज, एक क्वेश्चन आता है. एलिमेंटल ऑर्गेनिक में कोई एग्जाम्पल पूछता है. अभी 2 नंबर मैंने पढ़ाया है CBSE का. और अभी CBSE के मेरे 6-7 नंबर बाकी हैं जो पूरे टॉपिक से क्लियर करेंगे. राइट? तो अभी मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया. नॉट स्टार्टेड अ सिंगल टॉपिक बिकॉज अगर टॉपिक स्टार्ट किया होता तो आई हैड टू टेल फर्स्ट द कंडक्शन बेंड एंड बैलेंस, जो मैंने नहीं बताया. अभी मैं ज़रूरतें बता रहा हूँ, चैप्टर की ज़रूरतें बता रहा हूँ. व्हाट आर द नीड्स, क्या क्या मुझे बताना है इस चैप्टर. दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द CBSE बोर्ड. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर. देखो इस दुनिया में होल्स होते ही नहीं. मैंने कहा था आपको पहली ही बात कि अगर आप कोई भी चीज इस दुनिया में जो एग्जिस्ट है, कोई भी चीज दुनिया में ऐड होती है, माइनस ऐड होती है. आपको पता है था कैसे ऐड एक्चुअली में उसका नेचर निगेटिव का हो जाता है. जब ये पॉजिटिव के साथ जाता है तो अपने आप उससे अपने आप को अलग कर देता है. जोड़ते हैं तभी अलग होता है. अगर किसी चीज को जोड़ेंगे नहीं तो अलग भी नहीं. अगर मान लीजिए if there is no relation between me and जगत नारायण, how the fight will take place? Yes. सिंपल. जब तक हम एक दूसरे को, अब मैं मंगल ग्रह पर बैठा हूँ या अर्थ पे बैठे हैं, हम एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं हो. जब तक हम जोड़ेंगे नहीं किसी को तब तक वो टूटेगा कैसे. Yes, sir. राइट करो. Yes, राइट. sir. Yes. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है, वी आर एडिंग ओनली, रेस्ट अपने आप हो जाता है. राइट. तो यहाँ पर भी द केस इज वेरी सिंपल दैट योर अकाउंट इज इन माइनस. जब अकाउंट खुला होगा तो वही तो माइनस में नहीं होगा ना. पहले तो पॉजिटिव में रहा होगा, उसके बाद ही नेगेटिव में गया होगा. -90,000 का मतलब क्या होगा, जैसे ही 90,000 जाएगा वे क्लियर समझ रहे ना, आप डिपॉजिट करिए. राइट. In the same way, if you can talk about the holes and electrons, holes होते ही नहीं है इस दुनिया में. लेकिन अब आप कहेंगे सर ये ऐसा कैसे, आप कैसे, दुनिया में हर एक साइंटिस्ट कह रहा है होल्स होते हैं. चलो मैं भी मानता हूँ होल्स होते हैं. मेरा assumption है ड्यू टू द फिजिक्स होल्स होते हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना आपको जरूरी है, तो जाके आप जाके इसके बारे में यू नो अबाउट द होल्स. फर्स्ट नीड टू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट नीड टू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. व्हेन यू कैन कंप्लीट द क्राइटेरिया ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, you can complete the criteria of the holes also. Right? If you can go for valence band and conduction band, valence band and conduction band, simply you can say there are two types of semiconductor material, intrinsic and extrinsic. अभी मुझे पढ़ाना है डॉक्टर, intrinsic and extrinsic. Intrinsic is a pure semiconductor material. Pure. Intrinsic क्या है? Pure. और extrinsic क्या है? Impure. Right? नेम से ही क्लियर हो रहा है. इन और एक्स. एक्स का मतलब एडिशनल उसमें कुछ है, इम्प्योरिटी, और इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? प्योरिटी, प्योर सेमीकंडक्टर. व्हेन यू कैन गो फॉर दिस डायग्राम, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का डायग्राम है जहां पे वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है.
जो गैप है वो बहुत कम है, gap is very easy, is less than 3 electron volt. Now what you are getting, that some charge carrier, not carrier, carrier की तो आप बना रहे, कैरियर जो उसको लेकर चलेगा, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का मतलब क्या है? जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, जो ये डायग्राम हमने दिखाया है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, सम चार्ज कैरियर एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे हमने जो दिखाया ये डायग्राम, तो बैलेंस बैंड में तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यू विल गेट इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस बैंड। इज इट क्लियर? You are showing this situation at room temperature. When you are showing this situation at room temperature, then some electron are crossing from going from valence band to the conduction band. जहां से वैलेंस बैंड से निकल के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहा है, when electron crossing valence band to the conduction band, on the place of an electron you will get the hole, on the place of the electron you will get the hole। आपको क्या मिलेगा? ये हट के यहाँ पर गया और यहाँ पे जो प्लेस हो जाएगा उसके वहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, you get the hole। एक अभी नेम हमने दिया, राइट। So you are getting crossing of an electron and there is a hole। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल वहां पर होते जाएंगे। Each horizontal line represent energy level, right? जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्ट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ गया, अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, देयर आर 7 वैकेंट प्लेसेस, तो 7 वैकेंट प्लेसेस वहां पर होंगे, और जो वैकेंट प्लेसेस होंगे उसी को हम होल बोलेंगे, जिससे हम पॉजिटिव लेंगे, या टेकिंग इट एज अ पॉजिटिव। नेगेटिव अपने आप से कभी इस दुनिया में हम नहीं लेते, अगर किसी भी चीज में देखेंगे निगेटिविटी हम कभी भी इस दुनिया में लेते हैं, पॉजिटिविटी को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव आ जाता है। हमने क्या बोला, जो वैकेंट प्लेस है क्या है, पॉजिटिव। जब वैकेंट प्लेस पॉजिटिव है, क्लियर, जो मतलब कि होल्स का क्रिएशन हो रहा है। होल्स का क्रिएशन कब हो रहा है? होल्स का क्रिएशन तब हो रहा है जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहा है, और वहां पे वैकेंट प्लेस हो रहा है। That time you are getting some vacant places and you are getting holes। Is that clear? ये तो अभी हमारे पास, और आप बोलेंगे कि बॉन्ड टूटेगा, ये होगा। जर्मेनियम में, सिलिकॉन में जो मुझे अभी बताना है, जर्मेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताना है, सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताना है। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, I have not started a single topic, right? From tomorrow I will start। इसी तरीके से अभी तो होल्स बताया, अभी आपको क्लासिफिकेशंस बताया। आज if you can go for a modern era, semiconductor materials का यूज वाइडर लेवल। Why? पहली चीज, कोई भी चीज डिस्कवर करो, when there is some problem, लाइक पोल्यूशन प्रॉब्लम हमारे पास, हीटिंग इफेक्ट, हम बल्ब लगाते थे, हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ब्राइटनेस प्रॉब्लम, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम करता है, राइट। डू यू नो वन थिंग, अगर पूरी तरीके से इस पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी हो हर जगह, आपको पता है कितना बेनिफिट होगा? डू यू नो द बेनिफिट? आपकी इकॉनमी अपने आप से ट्रिपल हो जाएगी। हाउ? The generator is going on, I am paying for the diesel। Getting my point is, I am paying for the diesel। जनरेटर से सारे एप्लियंसेस सही तरीके से वर्क नहीं करते, राइट। अगर पावर बस मिले, अगर 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे इंडिया में, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मेडिकल, ये 3-4 चीज़ें अगर सही हैं तो अपने आप सारी चीज़ें सही हैं।
लेकिन इन 3-4 चीज़ों ही सही हमने नहीं किया और सब सही। इलेक्ट्रिसिटी हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस। फैक्ट्री अगर आप लगाते हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी है 24 अगर आप मशीन वर्क करेंगे, प्रोडक्शन विल बी हाई। सिनेमा हॉल इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, वहाँ प्रॉब्लम लाइट की नहीं है, वहाँ पे सिनेमा हॉल के लिए सही है, उनको पे कम करना पड़ता है। ऐसे यहाँ जनरेटर चलाते हैं, टिकट का रेशियो भी कम है, राइट, टिकट यहाँ पे उतना प्राइस में सेल नहीं होता है, तो इकॉनमी आपकी अपने आप पीछे हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? These are the main reason. तो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें उन्होंने क्या किया, सेमी कंडक्टर डिवाइसेज, अभी आप एलईडी का यूज करते हैं, एलसीडीज यू आर यूजिंग, लाइक अभी आप बहुत सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा पहले टेलीविज़न आते थे उनके लिए बहुत स्पेस की ज़रूरत होती है, आप आज वॉल्स पे लगाते हो टेलीविज़न, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू आर गेटिंग द कर्व टेलीविज़न, यू आर नॉट गेटिंग अ सिंगल प्रॉब्लम ऑन दैट। इज इट क्लियर? कर्व टेलीविज़न भी लगाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम, यू आर नॉट गेटिंग अ सिंगल प्रॉब्लम ऑन दैट। इज इट क्लियर? So these kind of things are important for everyone. Clear? Getting my point? Yes. These kind of things are important for everyone. You will do it from there. Clear? ये सारी चीजें जब हम अरेंज करेंगे, जब हमें सारी चीजें मिलेंगी, जैसे हमारे पास सेल फोन है, डे बाई डे वी आर गेटिंग न्यू वर्जन ऑफ अ सेल फोन, we are getting good things in the cell phone. How you are getting? Inventions going on. Semiconductor material you are utilizing at a broader level. You are communicating. You are in India, you are communicating with America. Yes. Right now Google Meet classes going on. Transferring of data going on. Transferring of cash going on. Virtual data are going on. 20,000, 22 lakh, 3 lakh you are transferring from your account. Cashless economy is going on, so it will give you the best thing in upcoming days, right? But it will take time. Few things are important that it will run physically, but few things are like जहाँ पे invention that everybody wants, road will be good, buses, electric buses, electric train, coal problem was there, so electric trains there, metros, bullet train working on electricity. It's showing the power of electricity. Right now अगर आपको यहाँ से वाराणसी जाना हो तो रोड इतना भी खराब है, अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड सही हो जाए, वाराणसी से बलिया के लिए मेट्रो चलने लगे या बुलेट ट्रेन चलने लगे, आपको कितना टाइम लगेगा? आप बलिया से बैठोगे वाराणसी पहुँचोगे। सबका जब इंटर कनेक्शन से, अगर मैं यहाँ सुबह बैठता हूँ और मैं 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूँ, only in 1 hour via the train, it will be best. मुझे अगर कोई काम खरीदना है, कुछ खरीदना है, मैं दिल्ली में जाके खरीदूंगा, right? I will purchase it from Delhi. But if I have to go to train, it will take 9 hours, 10 hours, 12 hours, 15 hours. The train will take. So that's the reason it's important. जो चिप आप देखते हैं, माइक्रो चिप, जो मेमोरी कार्ड आप यूज करते हैं, वो सेमी कंडक्टर का ही कमाल है। जो आज मोबाइल फोन में आप मेमोरी देखते हैं, ब्लैक वाली जो आती है, उसको जब आप ब्रेक करेंगे, उसमें पिन्स मिलते थे, शीट्स पतले पतले, वे मुझे पड़ा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। उतनी छोटी मेमोरी में मूवी भी हो जाती है, उसमें सॉन्ग्स भी हो जाते हैं, सब हो जाता है। वही चीज़ अभी आज क्या आ रहा है, इनबिल्ट है, इट्स कमिंग इनबिल्ट। पहले हम अलग से मेमोरी कार्ड खरीदते थे, अब आजकल मोबाइल में क्या है, इनबिल्ट है, दैट यू आर गेटिंग इनबिल्ट। आफ्टर सम टाइम यू विल गेट सिम इनबिल्ट। सिम में क्या होगा, इनबिल्ट। आप जो नेटवर्क चाहते हैं वे वहीं से लॉन्च करके आपको दे देंगे। सिम द सेम सिम कार्ड देयर, मेमोरी कार्ड यू आर गेटिंग, सेमीकंडक्टर का कमाल। इट्स अ टोटल मैजिक ऑफ एन सेमीकंडक्टर डिवाइस है। उसमें मूवी भी रखते हैं, सॉन्ग्स भी रखते हैं, क्रिकेट भी वॉच करते हो। 128 GB data you are storing in that, right? Getting my point? 128 GB data you are storing in, आप जेब में रख के घूमते रहते हो मोबाइल फोन। Clear? That's all for today. Tomorrow we will discuss more. Okay? Thank you.